Hello everyone. So in the previous classes, we had discussed about the plate tectonics theory and the different types of plate margin interactions. So after that, let us now have a look at the advantages of the plate tectonic theory. So the first one is it acts as a unifying theory. So it provides a comprehensive framework for understanding the Earth's geology, including the formation of mountains, volcanoes, earthquakes, shoreline, etc. तो ये एक डिटेल्ड थ्योरी है जिसमें अर्थ के काफ़ी सारे जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बताया गया है. फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा. The second one is that it explains the Earth's evolution. So it helps us to understand how the Earth's surface has evolved over the time and how to reconstruct its past continents and oceans. तो ये थ्योरी जो है ये अर्थ के सरफेस की एवोल्यूशन जो है उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताती है. देन इज इट यूनिफाइज द वोल्केनिक एक्टिविटी. तो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें इस प्लेट मूवमेंट के साथ साथ में वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में भी डिटेल में बताया गया है विदाउट एनी फर्दर और कोई एडिशनल हाइपोथेसिस के बिना ही यहाँ पे उसी थ्योरी में ही वोल्केनिक एक्टिविटी भी इंक्लूडेड है. सो इट एक्सप्लेन्स the volcanic activity without the need of any additional hypothesis. The next one is that it shapes the global environments. So it shapes the Earth's environments through rock cycle, volcanism, mountain building and distribution of continents and oceans. तो इस थ्योरी में जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसके थ्रू हेल्प मिलती है environment को in the form of rock cycle, through volcanism, mountain building, etc. Then is the impact. It impacts the sea levels as well. तो कोस्ट लाइन पे जैसे ये प्लेट की मूवमेंट बताई गई है और उसके साथ साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली जो सी लेवल है उसमें भी राइज और फॉल देखने को मिल सकता है. तो कोस्ट लाइन के जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है. Then finally, it explains where and why the events occur, for example, earthquakes and volcanic activity. So these were some of the points for the advantages of the plate tectonics theory. So having studied about the advantages of plate tectonic theory, now let us have a look at some of the criticisms or the limitations of this theory. Limitations or the criticism of the plate tectonics theory. So the first one is that plate tectonics in the past, मतलब जिस टाइम से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी गई थी दैट वाज फ्रॉम कार्बोनिफेरस पीरियड. तो उससे पहले की जो जियोमॉर्फिक चेंजेस थे अर्थ पे उनको ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. सो द प्लेट टेक्टोनिक्स इन द पास्ट they cannot be explained by this theory. For example, the formation of earlier mountains like Aravallis. We have Aravallis are very old mountains. तो उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो इस थ्योरी से हम लोग पता नहीं लगा सकते. देन देयर इज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होती है. द फॉर्मेशन एंड ब्रेकअप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट लाइक पैंजिया, उसको भी ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन. तो जो पहले मूवमेंट्स हो रही थी वो आज वाले मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट हैं. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं पुरानी वाली टाइम की जो मूवमेंट्स थी अर्थ की उनको ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. देन सेकंड वन इज both the African and the Antarctic plates, they are surrounded by ridges and have no subduction zones, while the Pacific plate is surrounded by trenches on all the sides. The future of these plates is not clear yet. तो क्या है कि जो अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिक प्लेट है उसके सभी साइड्स पे रिजेस हैं और कोई भी सबडक्शन जोन नहीं है, वाइल जो पैसिफिक प्लेट है उसके सभी साइड्स पे ट्रेंचेस हैं. तो इन प्लेट्स का क्या फ्यूचर होगा ये इस थ्योरी से कोई क्लियरली हम लोग पता नहीं लगा सकते. Then is the inability to explain all geological phenomena. For example, the formation of certain mountain ranges. The specific mechanism behind the volcanic activity at the hotspots like Hawaii, that is the phenomenon of mantle plumes, they are not fully elucidated by this theory.
तो कुछ फिनोमिनन की जो पहले के पुराने माउंटेन्स हैं वो कैसे बने, या फिर कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे मेंटल प्लूम्स आके हिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो वॉल्केनोज बन रहे हैं उनको, तो वो जो एरिया है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। तो वो वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स का जो फिनोमिनन है वो भी ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। That is, it does not provide a complete understanding of the forces driving this movement. तो जो फोर्सेस हैं इन प्लेट्स की मूवमेंट्स के लिए, उनको ये थ्योरी जो है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और बाद में ही जो बाकी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, लाइक द कन्वेक्शन करंट्स और स्लैब्स की मूवमेंट, मेंटल प्लूम्स एटसेट्रा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो बाद में आए थे। बट ये थ्योरी ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। The role of mental convection is acknowledged, but the exact mechanisms and the dynamics are still not fully understood, leading to questions about the driving forces behind the plate interactions. तो ये प्लेट्स की जो मूवमेंट है, इनको जो फोर्सेस ड्राइव कर रही हैं, वो फोर्सेस के बारे में इस थ्योरी में अच्छी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। That is, the theory tends to generalize the interactions between the tectonic plates. तो क्या है कि अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की जो अलग-अलग इंटरैक्शंस हैं, उनको एक तरह से इस थ्योरी में जनरलाइज़ किया गया है, व्हिच कैन लीड टू ओवर सिम्प्लिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, दैट इज़ द पैरेलल plate boundary, that can vary significantly from one location to another. The San Andreas fault in California, it behaves differently than other transform boundaries, which complicates the predictions about the seismic activity. Seismic is about the earthquakes. तो ये जो थ्योरी है ये कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की जो इंटरेक्शंस है उनको जनरलाइज करने की कोशिश करती है, उनको पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और जो एग्जेम्पशंस हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है। ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी है कि हर प्लेट बाउंड्री को उन्होंने पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया। बट जो एक्चुअली क्या है कि कुछ जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो अलग तरह से बिहेव करती हैं अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, द सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, तो वहाँ पे जो पैरेलल फॉल्ट है, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, उसका बिहेवियर अलग है एज कंपेयर टू द अदर पैरेलल प्लेट बाउंड्रीज. So that is also one of the limitation of this theory. The last point is, it does not account the role of internal processes like mental plumes or the impact of subduction on the mental's composition. तो ये जो थ्योरी है ये अर्थ के नीचे वाले जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती। फॉर एग्जांपल, मेंटल प्लूम्स के बारे में नहीं बताती, और जो सबडक्टिंग जोन में जो प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, मेंटल में कंज्यूम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या मेंटल की कॉम्पोजिशन में, मेंटल की मिनरल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आता है या नहीं, तो वो चीज़ें ये थ्योरी नहीं बताती है। For example, the presence of hotspot volcanism, it does not always correspond to the plate boundaries. तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हॉटस्पॉट वल्केनिज्म हो रहा है, मतलब वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे मेंटल प्लूम है नीचे, उस जगह पे ज़रूरी नहीं है कि प्लेट बाउंड्री ही हो। वो एक पर्टिकुलर प्लेट के बीच में भी कहीं पे भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि प्लेट बाउंड्री पे ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री पे ही जो हॉटस्पॉट वल्केनिज्म है वो डेवलप होगा। मेंटल प्लूम तो प्लेट में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो कहीं पे भी जहाँ पे नीचे मेंटल प्लूम है और ऊपर प्लेट की मूवमेंट होती जा रही है, तो वहाँ पे अलोंग दैट मूवमेंट ऐसे वॉल्केनिक चेन्स बनती जाएंगी, दैट आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। तो उनके बारे में भी ये थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है। सो दीज वर द various limitations of plate tectonic theory. So with this we conclude the plate tectonic theory.